Good morning, one and all present here. Let us try solving 2019 morning shift part 1. Right, somebody should read out the question. In a class, Simmer. in a class, 60% of the students are girls and the rest are boys. There are 30 more girls than boys. If 68% of the students, including 30 boys, pass an examination, the percentage of the girls who do not pass is. So 60% are girls, so 40% are boys. Yes, no? Yes, sir. Now, there are 30 more girls than boys, so this 20% is equal to 30. So there are 90 girls, 60 boys, right? yes, sir. 68% of the student, they pass examination. So there are 150 total students. 68% of that will be 102 pass 102. examination, Yes, sir. right? So how many boys pass? 30. So how many girls will pass? 72. How many girls will not pass? 18. 18. What is percentage? 20. Got it, everyone? Yes, sir. Yeah. Question number 2. If 5.55 raised to the power x equals 2.555 raised to the power y equals 2000, then the value of 1 by x minus 1 by y is. So this question may seem very difficult. ठीक है, ये देखने में हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, पर ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है. ठीक है, देखो कैसे देखोगे इस क्वेश्चन को आप. हाउ यू सी दिस क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है भाई हमें? 5.5 रेज टू पावर एक्स, और ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.55 की पावर y इज इक्वल टू 1000. सो अगर आप इसको लॉग से भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना लॉग के भी कर सकते हैं. बिना लॉग के करा दूं पहले. Yes, sir. व्हाट इज दिस इक्वल टू? 10 by 3 by x. Yes, no? Yes, sir. Okay. Is it clear? बोलो. जी सर. Yes, sir. सो इसको इससे डिवाइड कर दो. 1000 इज इक्वल टू ठीक है. कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? Sir, 10 is equals to. हाँ, 10 is equals to. या ये 10 ही आएगा. दिस विल बी 10 एक्चुअली. एक मिनट. सो ये हमने डिवाइड गलत कर दिया यहाँ पे. इट शुड बी एक्चुअली दिस गिव्स यू 10, नो? ये भी 100 नहीं है. 100 क्यों लिखा है ये हमने? 10 आएगा सर. This will also be 10. 10 is equal to 10 raised to power 3 by x minus 3 by y. 1 by x minus 1 by y. 1 by 3. क्लियर हो गया भाई?
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. With rectangular axis of coordinates, the number of paths from 1, 1 to 8, 10 via 4, 6, where each step from any point x, y is either 2x, y plus 1 or 2x plus 1y तो is या तो ऊपर जाना है या इधर जाना है, फिर उसके बाद जो ऊपर जाना है या इधर जाना है, जो ऊपर जाना है या इधर जाना है. ठीक है ना, स्टेप फंक्शन हो गया ये. जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पाथ वाला क्वेश्चन करते थे ना, वही क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो 1 से लेके 4, 6 तक जाना है, इससे 8, 10 तक जाना है. ठीक हो गया भाई. Yes, sir. तो जो ऊपर वाले का फार्मूला क्या रहता है, 1, 1 से लेके 4, 6 तक जाना, 3 स्टेप अप जाने हैं, 5 स्टेप ये जाने हैं. तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इजंट इट? Yes, sir. यहां से यहां क्या हो गया, 4 स्टेप ऊपर और 4 नीचे, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ये आंसर आ जाएगा. तो ये एक आ गया 56 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 35. 30. 35. पक्का 70 होता है मेरे ख्याल में. 70 होता है. 8 Yes. 7 6 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4. 70 होता है बेटा. 56 इंटू 70 3920. 3920 is the answer. हाँ जी. Next. a club has 256 members, of whom 144 can play football, 123 can play tennis, and 132 can play cricket. Moreover, 58 members can play both football and tennis, 25 can play both cricket and tennis, while 63 can play both football and cricket. If every member can play at least one game, then the number of members who can play only tennis is. See, only tennis will be the people which will be total minus who are playing football or cricket, right? The total is 256 minus how many people play football? 144 plus 132, right? Minus both. Both वाले कौन से होते हैं? 63. So this shall give me answer equal to 43. वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी समझ के कर सकते हो थोड़ा सा. ठीक है ना, क्योंकि हमें ओनली क्रिकेट चाहिए नहीं, ओनली टेनिस चाहिए. ये फुटबॉल वाले, ये क्रिकेट वाले, तो ये सारे आ गए. ये सारे टोटल में से माइनस कर दो, ये वाला एक्स आ जाएगा, विच इज ओनली क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर इसी में ओनली फुटबॉल पूछा होता, ओनली फुटबॉल पूछा होता तो हम क्या करते, टोटल माइनस क्या क्या है आपके पास, क्रिकेट और टेनिस. ठीक, और इनके कॉमन. हाँ मतलब वो तो क्रिकेट और टेनिस कैसे निकलेगा, क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस क्रिकेट एंड टेनिस. ठीक है सर. सर और कुछ होते कि जो कुछ भी नहीं करते, वो तो जीरो है ना. एटलीस्ट वन गेम, एवरीवन प्लेज एटलीस्ट वन गेम. अगर गेम में क्वेश्चन में ऐसा होता तो टोटल में से माइनस करके बाद में करते. टोटल में से पहले वो माइनस करते. ओके सर. सो नेक्स्ट. In a circle of radius 11 centimeter, CD is a diameter and AB is a chord of length 20.5 centimeter. If AB and CD intersect at a point E inside the circle and CE is length 7 centimeter, then the difference of the lengths of BE and AE in centimeter is. ये हो गया. तो Yes, sir. ये टोटल 22 हो गया. ठीक है. Yes, sir. ये 7 है तो ये 15 हो गया. ओके. Yes, sir. तो ये अगर x है तो ये 20.5 माइनस x हो गया. ठीक है. Yes, sir.
तो 20.5 minus x into x should give you 105. ठीक है भाई? तो यहाँ से देखने से पता लग रहा है x की दो वैल्यू आ रही हैं, 10.5 and 10. बोलो, यस सर। पर हमें तो डिफरेंस ही पूछा है ना उनका. यस सर। ओके, समझ आया नहीं आया? यस सर, इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड से होगा। या तो क्वाड्रेटिक बना दो इसकी यहाँ से, नहीं तो यहीं से भी आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो. हाँ जी सर। चलिए, 6th क्वेश्चन. Nina scores 40% in an examination, and after a review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. In her post-review score is increased. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The देखो, percentage पहले score needed- 40% आए, फिर उसके 60% आए, फिर उसके 72% हो गए. राइट? ये एक्चुअल स्कोर है. बोलो. Yes. So this is passing minus 35. Right? नहीं सर, वो 60% है passing minus 35. 60 पे आके सर अच्छा. 40 minus 35 ये है. बोलो. This is passing plus 7. 7. Yes, no? बोलो भाई. यस सर। Yes, sir. Isn't it 12% is equal to 42? बोलो. यस सर। 12% of a number will be 42, no? यस सर। Yes, sir. So percentage score needed for passing examination. So you need somewhere here, no? You need 3. 72 के बीच में आएगा सर, एक ही ऑप्शन है। सर एक ही ऑप्शन है सर, इसके ऐसे बीच देख में लेंगे। आएगा. तो आंसर इज 70. वैसे भी इसको कर सकते हो. सर 1% की वैल्यू निकाल के 7 देख लेंगे कितना होता है। हाँ, ऐसा भी देख सकते हो. 7 2 ज्यादा होगा। ठीक है. तो 42 is equal to 12%. So 7% is equal to 7 is equal to 2%. वो कम कर दो भाई, 70 आ गया. यस, परसेंटेज पूछा है ना उसने. एक्चुअल मार्क्स नहीं पूछे हैं कितने पे पास होगा. That he can also be calculated, but he is asking score for passing, right? Percentage score. अगर अच्छा स्कोर पूछा होता कितने स्कोर पे पास हो जाएगा, तो 12% 42. 100% निकालते सर पहले। 100. नहीं बेटा, नहीं. 60% is equal to 210. अच्छा ठीक है, 210 पे वो 35 पे फेल हो रहा है, प्लस 35, ठीक है सर। ओके सर. 245. ठीक हो गया. यस सर. नेक्स्ट. Corners are cut off from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon H. Then the ratio of the area of H to the area of T is. This will be area 1, this will be area 1, this will be area 1. The left out area will be 6. So 6:9. Body mass theorem लग गई बेसिक वाली. सर ये आपने उसमें कराया था ना कैट शो में या क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट. Let T be the triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45 equals to 0 and the coordinate axis. Let the circumcircle of T have radius of length L measured in the same unit as the coordinate axis. Then the integer closest to L is. तो ये स्ट्रेट लाइन है, आपके पास एक एक्सिस है. यहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है.
ठीक है, बोलो। उसके Yes, बाद sir. इसने क्या बोला, क्या है, एक सर्कल है। सर्कल क्या कर रहा है, ये रेडियस पता कर रहा है ना, बोलो भाई, आर यू गाइस देयर? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या हो गया, x बाय 15 प्लस y बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए इसको। Yes, sir. Yes, sir. x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 15 हो गया, Yes. y का y 9, 9. तो ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, ये लेंथ आ जाएगी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 9 का 81. 306 का अंडरूट, which is approximately 17.5. approximately. तो 8.75 is the half of it radius, right? सर एक बाकी चीज तो पता लगी सर, स्केयर क्यों किया 15 और 9 का? पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, अच्छा ठीक है। तो ये आर आ गया आपका, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 8 circum radius. समझ आ गया भाई सबको, बोलो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर मतलब जो आपने 90 का एंगल है वहां से जो साइड निकली उसकी रेशो साइड लेंथ निकाली है कौन सी? सर आपने? अच्छा ठीक है, ऊपर वाली निकाली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी कुछ कवर हो गया है इसमें, ठीक है। हाँ जी, 9th। For any positive integer n, let f of n equals to n into n plus 1 if n is मतलब even. पिछले दो नंबर की गुना कर देनी है, मतलब जैसे f ऑफ 1 क्या हो गया, if n is even, right, n is even है, n plus 3 if n is odd, f of 1 क्या हो गया भाई, सबसे पहले बोलो, 1 + 3 4 हो गया। Yes, sir. f of 2 क्या हो गया, 6. 6. 2 into 3 is equal to 6। f of 4 क्या हो गया, नहीं, f of 3, 6 f of 4 4 4 5 20 20. 20. f of 6 14 42. फिर 5 आएगा ना पहले। 82 सर। 6 into 7 42, yeah, 6 + 1 7 6 42 and f of 5 5 8. 8. okay. So if m is a positive integer such that 8fm plus 1 minus fm is equal to 2, ठीक है, 8 गुना इसका माइनस fm is equal to 2, then m equal to, ठीक है। अब देखो, ये इसका अप्रोक्सीमेटली 3 गुना है, ये 1 गुना है, और ये कितने गुना है, 5 लगभग। 5 गुना। Wait. ऑब्वियसली fm जो होगा वो, क्योंकि ये बड़ा है ना fm, हाँ जी सर। ठीक है, और ये छोटा है fm plus 1, तो ये वाला इवन हो जाएगा ऑब्वियसली, नहीं, ये बड़े वाला, हाँ, बड़े वाला इवन हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर। तभी होगा ना। तो और ये मेरे को 8 गुना के पास में चाहिए, चलो f8 ले लेते हैं। व्हाट इज f8? 9 72 72. व्हाट इज f7? 10. 10. f9 एक्चुअली 12. 12, sir. 6 12 आ रहा है, 6 टाइम्स आ गया, हाँ जी ये सर। जस्ट स्मॉल अवे। लेट मी टेक f10, 110. 110, f11, 14. 14 14. तो 14 8 जा 112. 112 हो गया, ट्रू। 2.
then m is equal to 10. m क्या हो गया? 10 हो गया. बोलो. Yes, sir. अच्छा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो. 8fm+1 क्या हो जाएगा? अब आपको पता लग गया ना m इवन है, ये वाला ऑड है. ठीक हो गया? तो इस पे ये वाला फंक्शन लगा दो. तो 8 इंटू n+4 राइट माइनस, बोलो, ये हमारा इवन है. Yes, sir. 2 ही आएगा ना. एक मिनट, m इंटू m+1 इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन समझ आ रही है? जी सर. खोलो क्या बन गया ये. 8m + 32 माइनस m² माइनस m Minus इज इक्वल टू is 2. equal to 2. m² माइनस 7m, Plus बोलो, 30. Plus 30. माइनस 30 इज इक्वल टू 0. 0. From here m will come 10 and minus 3. Yes, sir. बोलो भाई, yes no. Yes, sir. As it is a positive integer, it has to be 10. मैंने दोनों मेथड बता दिए, हिट एंड ट्रायल भी और लंबा मेथड भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The population of a town is P in the beginning of any year, then it becomes 3 plus 2P in the beginning of the next year. If the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population in the beginning of 2034 will be. देखो भाई, पॉपुलेशन क्या हो रही है? 2p + 3 हो रही है, डबल होके 3 गुना हो रही है. ठीक हो गया? ये हो रहा है ना. नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? 2003. जी बोलो, सर. हाँ जी सर. अगले साल क्या हो जाएगी? 4006. 4006 + 4009. 3 4009. 4009. Yes sir. के बाद 8021. 2003 4009 8021. 8021 Yes sir. और 16045. 16,000. Can you see this increase? Yes sir. The first year is 1000. ठीक है. अब हम देखेंगे कि यार ये मेरा नंबर कैसे बढ़ रहा है. How this number is increasing, right? So अब हम देखते हैं कि ये वाला नंबर है ना, जो 3 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 21 आ रहा है और ये 45 आ रहा है. और ये वाला नंबर कैसे चल रहा है? मेरा सिंपल चल रहा है, राइट? हाँ जी सर. बोलो. तो कैन आई से माई दिस इज 1000 into 1000 into n times, नहीं, 2 raised to power n minus 1. ठीक है? into 1000. बोलो हाँ या ना. बोलो. और 3 9 21 45. सर आपने ठीक है सर. ठीक हो गया? नहीं हो गया? सर 2 के साथ जैसे मल्टीप्लाई किए क्योंकि 2 के साथ वो बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होके जैसे 4 हाँ, 8000 ये फर्स्ट ईयर लगा लो ना. ये 0 ईयर मान लिया इसको. नहीं, ठीक है ये सर. फर्स्ट ईयर इसको मान लिया. अगर जी सर. इसको फर्स्ट ईयर मान रहे हो तो n-1 करने की जरूरत नहीं है. हाँ जी सर. मतलब 1 साल बाद क्या होगा? n इज कितने साल बाद? ओके n इज कितने साल बाद? तो 1000 into 2 raised to power n हो गया. ठीक है? हाँ जी सर. बोलो. और ये हो गया 3 into ये वाला प्लस 3 into 2 raised to power n-1. 2 raised to power. ये हाँ जी 3 सर. है, 3 ये into 2 6 9 into 2 18. ठीक है सर. 6 हो गया. यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, 9 ही आ रहा है. 9 ही आएगा ना. 2003. और ये ठीक है सर. 18 21. तो 3 चौके 12. नहीं, एक्चुअली ये बन गया हमारा, नहीं, ये भी ठीक नहीं है, -3 बन गया. ये ठीक होगा. दिस इज हाउ वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ n.
तो बेसिकली ना इसको ऐसे करो, लेट मी इरेज एवरीथिंग एंड गिव यू अ क्विक मेथड. कैन वी राइट इट एज 1003 minus 3 second is equal to 1003 into twice minus 3. ठीक है. Third is 1003 into 4 minus 3. 1003 into 8 minus 3. बोलो. हाँ या ना? जी सर बिल्कुल. ठीक है. तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है हमारी. ये 2019 में जीरो टर्म में 2020 पहली है, हमें 2034 चाहिए. सो आई थिंक इट विल बी 15 टर्म्स. 15th टर्म होगी यहाँ से. तो ये हो जाएगा 1003 into 2 raised to power 15 minus 3. यार थोड़ा सा ट्रिकी था. हाँ जी सर. सर ऐसे तो आसान हो गया जो अभी करवाया तरीका इससे. हाँ, इससे आसान हो गया. दूसरा एक और फंडा हो सकता है इसका कि आप देखो कि ये 15 साल बाद होगा. ठीक है ना? कितने साल बाद होगा? 15 साल बाद. बोलो हाँ या ना? हाँ जी Yes, सर. sir. तो अगर कोई भी चीज 1 साल बाद होगी, कब होगी? 1 साल बाद. तो 1 साल बाद. तो 15 की जगह 1 आ जाएगा. हाँ जी सर. आर यू गेटिंग? तो 1 साल बाद होगी, 15 की जगह 1 आ जाएगा. Yes, sir. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2003. नो? हाँ जी सर. Yes, sir. अरे ये वेरिएबल है ना, ये 15 है. ठीक है सर. तो देख लो कौन सी वैल्यू आपको 2003 दे रही है. ये वैल्यू 2003. एक ही दे रही है सर सी. Okay, sir. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Person invested a total amount of rupees 15 lakh. A part of it was invested in a fixed deposit earning 6% annual interest, and the remaining amount was invested in two other इस पे deposits. 90,000 कमाना था, उसने कमाया 76,000. राइट? लॉस ऑफ 14,000 because to x he gives 3% less and to 2x he gives 4% less. x अमाउंट को 2% 3% लेस दे दिया और 2x को 2% लेस दे दिया. So he has a loss of 3x% and 4x%. So total loss is 7x%, right? Yes, sir. x comes out 2 lakh. तो इसको x दिया था 2 लाख, इसको 2x दिया था 4 लाख, तो 6 लाख उसने बाहर दिया था. तो उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 9 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ये वही Product of कैट शो वाला क्वेश्चन है ना. हाँ जी. the product of two positive numbers is 616. If the ratio of the difference of their cubes to the cube of their difference is 157:3, then the sum of the two numbers is To the cube of their difference. ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना? जी सर. ठीक है. अब ये 15:3 है, ये बोल रहा है. नहीं, एक मिनट. ये है 157/3. ठीक है, ये बोला ना इसने. प्रोडक्ट बोलो. यस सर. और ए बी इज इक्वल टू 616 है. सर मेरे ख्याल ए बी इज इक्वल टू 616 है. ए बी 616 हो गया. जी सर. ये हुआ ना. द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस इज दिस. ठीक हो गया ये तो. हाँ जी. जी सर. अब हम क्या करेंगे यार, देखो हम कहेंगे कि मेरा जो नंबर है इसको मैं मतलब नंबर ऑफ वेज से लिख सकता हूँ. ठीक है, इसको भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ से मेरे पास 616 है. मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ सबसे पहले. ठीक है, 2 पे गया 308,
बोलो आगे। फिर 2 पे गया 150, 154 154 फिर 11 पे गया 77 14 14, सर 11 पे 14 तो 2 raised to power 3 into 7 into 11, अच्छा 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक हो गया ना। yes sir 77 into 8 आ गया, 77 और 8 आ गया। और क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। हमें क्या लेना है, अब सम ऑफ द टू नंबर्स हमें चाहिए, क्या चाहिए, वो हमें अपनी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसमें से रैंडमली देखता हूं कि मेरे क्या क्या नंबर बन सकते हैं, राइट बेटा, बोलो। सर आपने नंबर्स के फैक्टर इसलिए निकाले बिकॉज नंबर निकाल ओ टू ए और पॉजिटिव का प्रोडक्ट है ना, ए और बी निकल जाएगा। ए और अच्छा, बी two का का। प्रोडक्ट है। ठीक है सर। या तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पुट कर दूं, ठीक है, नंबर बढ़ ठीक जाएगा। है सर। लंबा हो जाएगा। बट हम यहाँ से ही देखते हैं कि मेरे क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसे 11 को एक साइड ले लो, 11 को ले लिया तो 56 आ गया, 88 और 7 हाँ जी सर। 56 आ गया, हाँ जी Yes, सर। sir. और 88 into 7 आ गया। बोलो, yes sir ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, हाँ जी सर। ठीक है। वी डोंट नो व्हाट विल बी दी पॉसिबिलिटी। जैसे 44 into 14 आ गया, ठीक है, Yes, sir. तो ये 58 भी बन रहा है, 95 भी बन रहा है, 85 भी बन रहा है 85 भी बन रहा है, ठीक है, और 28 into 22 भी आ गया, ठीक है, ये भी बन रहा है। yes sir ठीक है, हो गया। हाँ जी सर हाँ, तो ये वाले टेक्निक तो काम नहीं करेगी, बट स्टिल यू विल बी एबल टू नो कि भाई यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब Yeah. इनमें इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना, ठीक है ना। 77 का क्यूब कहाँ से करोगे, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते होते हैं। अब मैं अलजबरा पे आता हूँ, ठीक है। व्हाट यू कैन राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A minus B into ए माइनस बी इंटू A A plus ए A स्क्वायर plus माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस plus AB. plus प्लस ए बी, राइट, अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब। बोलो भाई, ठीक हो गया या नहीं हो गया। तो दिस विल गो, इट विल रिमेन स्क्वायर। बोलो, Yes, yes sir. sir ए Yes, स्क्वायर sir. प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी सर अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, Yes sir. yes sir वी कैन सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या हो गया। बोलो भाई, क्या हो जाएगा। सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगी अब तो। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस plus 3ab 3ab प्लस 3ab इज is इक्वल equal टू to 157 157a square plus प्लस 157 157 b b square square minus प्लस 3 minus माइनस 314 ab 314ab. So it becomes 154a square plus 154b square minus minus 131 b minus ab 317. 317. 317 ab कितना है भाई, 616 is equal to 0। बोलो, या इज इक्वल टू दिस हो गया। Sir. Yes, ये sir. कट के ये कट के ये कट के 4 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1268। बोलो, Yes sir. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस प्लस 2ab। 2ab क्या हो गया, 1232 1232 25 इज इक्वल टू 2500। 50
ए और बी इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहां से यहां तक तो रिड्यूस हो ही जाएगा। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, सिंपल अलजेब्रा, राइट? फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains ₹7. If he sells the pen at 5% gain and the book at 10% gain, he gains ₹13. What is the देखो cost भाई, price of the book? अगर 0.95 पेन ले ले प्लस 1.15 बुक ले लें, Book. इज इक्वल टू 7. P plus T 7. plus 7। ओके हो गया। 1.05 P प्लस, बोलो 1.10. इधर इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही इक्वेशन लिख लेता हूं। P/20 प्लस 5P minus 5P plus 15B 15B is equal to 7. 5P plus 10. Plus 10. plus B. 10. is equal to 13. 13। 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ऐड कर दिया, 25B is equal to 2000, B is equal to 8। इजी हो गया ना? Yes, sir. किसी को समझ नहीं आया पूछ सकता है भाई। ये लास्ट पे 100 कहाँ से आया 20 के साथ? अरे वो परसेंटेज में था ना। ठीक है। परसेंटेज में था ना। सर तो इसका कोई शॉर्टकट है या इक्वेशन से ही करना पड़ेगा? ऐसे कर लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट करा दूं? बोल दो। Yes, sir. कौन बोल रहे, किस किस को शॉर्टकट चाहिए? चलो क्वेश्चन बताओ फिर। सर शॉर्टकट। एक पेन को 5% लॉस पे बेच रहा है, एक पेन को 5% lose. और किताब को 15% gain पे। हमने 2 बंडल बनाए, एक बंडल में एक पेन डाला, एक किताब डाली, दूसरे बंडल में एक पेन डाला, एक किताब डाली। पहले पेन को हमने 5% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 5% लॉस पे बेचा। मतलब पेन बेच के ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बोलो यस। Yes, sir. एक बुक को 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी बुक को 10। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया? 12.5%। Yes. ठीक है, तो 10 रुपए बने मेरे को। अरे एक पे 7 बने, एक पे 13. चलो ये भी मत करो। मैंने कितना प्रॉफिट बढ़ाया? 25. 5 रुपए। 5% प्रॉफिट बढ़ाया नहीं? Yes, sir. नहीं चलो ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं। 12.5%, 12.5% हुआ ना हमारा प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बुक Yes. पे। Yes, sir. प्रॉफिट फ्रॉम बुक इज 12.5%, यस सर। which is equal to 10 rupees each book। आंसर आ गया। If 12.5% is equal to 10,
then book price is 80. Next question. Two cars travel the same distance starting at 10 a.m. and 11 a.m. respectively on the same day. They reach their common destination at the same point of time. If the first car traveled for at least 6 hours, then the highest possible value of the percentage by which the speed of the second car could exceed that of the first car is. So they reach their common destination at the same point of time. If the first car traveled for at least 6 hours, ठीक है, तो पहले वाली 10 बजे चली, बोलो बोलो, Yes, sir. और कितने बजे पहुंच गई? 6 घंटे चली, ठीक है, तो 4 बजे पहुंच गई। दूसरी वाली 11 बजे चली, वो भी 4 बजे पहुंचेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. इसको 6 घंटे लगेंगे, इसको 5 घंटे लगेंगे। Yes, 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 sir. sir. तो ये 5 घंटे लगेंगे, इसका स्पीड 5 होगी, इसकी स्पीड 6 होगी। ये हो गई। कितनी इंक्रीज हो सकती है? 20%। 20%। अब आप कहेंगे सर ये हाईएस्ट वाला क्या चक्कर है? उसने कहा कम से कम 6 घंटे लग रहे हैं। अगर पहली वाली को 7 लग रहे हैं तो इसको 8 लगेंगे, सॉरी 6 लगेंगे। अगर इसको 10 लगेंगे तो इसको No. 9 लगेंगे। अगर 10-9 लगे तो ये 9-10 होगी स्पीड की रेशो। Yes, sir. इंक्रीज इज 11.11%। हमें हाईएस्ट इंक्रीज निकालना है तो लोएस्ट ही लेना पड़ेगा। लोएस्ट 6 है तो इसको 6 घंटे, इसको 5 घंटे, इसकी 5 की स्पीड, इसकी 6 की स्पीड, कितनी ज्यादा है? 20%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At their usual efficiency levels, A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as she usually does, and B had worked thrice as efficiently as he usually does, the task would have been completed in 9 days. How many days A would plus B take? into 12 is equal to A by 2 plus 3B into 9। हो गया? ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4A plus 4B is equal to 1.5A plus 9B. 2.5A is equal to 5B. A is equal to 2B. How many ways A? तो B की जगह पे हाफ A पुट कर दिया। B is equal to half A, no? Yes, sir. 1.5 into 12, 18 days लगेंगे। ठीक है? Yes, sir. 18 डेज आ गया भाई। Yes, sir. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन। If A1 plus A2 plus A3 up to AN equals to 3 into 2 raised to the power n plus 1 minus 2, then A11 equals? बोलो भाई A11 तक का सम क्या हो गया? 3 into 2 raised to power 12 minus 2, सम ऑफ 10 क्या हो गया? 10 तक का टर्म 3 into 2 raised to power 11 11 minus minus 2. 2. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11th टर्म आ जाएगी। 3 into 2 raised to power 12 minus 2 raised to power 11। 2 raised to power 12 होता है 4096। 2048 into 3। 2048 into 3 क्या होता है? 6144। तो नहीं है ये आंसर? Yes, sir.
number of the real roots of the equation 2 cos x of x plus 1 equals to 2 raised power x plus 2 raised power minus x है. इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1,1. Yes, बोलो sir. हाँ या ना. Yes, sir. अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 - 1 हो सकती है तो इसकी वैल्यू पूरे की +2 या -2 हो सकती है. तो 2 raised to power x plus 1/2 raised to power x. x is a real value, real roots चाहिए. तो x can have a minimum value of कुछ भी वैल्यू डाल लो, ये 2 से कम नहीं हो सकता. ठीक है. तो but this cannot be more than 2. So only when they will be equal, when both of them are equal to 2. So this will be equal to 1 plus 1/1. For that x is equal to 0. तो यहाँ पे x 0 आ गया, एक वैल्यू आ गई. इधर ये बनाने के लिए cos 0 1 होता है, तो x into x plus 1 should be equal to 0. तो x is equal to either 0 और -1. और यहाँ 0 पे तो 2 आ रहा है, -1 पे 2 नहीं आ रहा है, because -1 will give 2 raised to power -1 plus 1/2 raised to power -1, which will be 2 plus 1/2, which is 2.5. तो 2.5 नहीं है x. ठीक है, मतलब यहाँ 2.5 नहीं है, 2 आ रहा है. तो there is only one solution possible. Okay. Yes, So sir. part Yes, one we sir. are done. Thank you very much, everyone.